A, B and C are equal partners. Question 4, valuation of goodwill. A, B and C are equal partners. They wanted to change the profit sharing ratio into 4:3:2. Make the necessary journal entries. Goodwill of the firm is valued at 90,000. चलो let's start. हम बनाएंगे टेबल. पार्टनर्स है A, B, C. गुडविल, particulars A, B, C. गुडविल कितना है? 90,000 है. सो आप लिखोगे रेज 90,000. जब भी गुडविल रेज होगा वो ओल्ड पीएसआर में होगा. ओल्ड पीएसआर इज 1:1:1. सो हर पार्टनर को क्रेडिट मिलेगा 30-30-30. उसके बाद राइट ऑफ होगा 90,000. 4:3:2 नया रेशियो दिया हुआ है. 4:3:2 तो डिवाइड करो. सो पार्टनर को डेबिट दो. डेबिट 40, डेबिट 30, डेबिट 20. सो आपको मिलेगा नेट इफेक्ट. ए को मिलेगा डेबिट 10 बिकॉज डेबिट ज्यादा है. बी को कुछ भी नहीं मिलेगा बिकॉज डेबिट एंड क्रेडिट सेम है. और सी को क्रेडिट मिलेगा बिकॉज क्रेडिट ज्यादा है. सो क्रेडिट विल बी 10,000. सो आप जर्नल एंट्री पास करोगे. ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 to C's capital account 10,000. A's capital account debit 10,000 to C's capital account 10,000. उसका नरेशन लिखोगे आप. Being the net effect for goodwill, on the change in PSR. ये प्रॉब्लम तो समाप्त हुआ. तो आप अब जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 पेज 48. वो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के ऊपर ही क्वेश्चन है लेकिन डेथ में रखा हुआ है. सो कम टू क्वेश्चन नंबर 6 ऑन पेज 48. ध्यान से पढ़ोगे. Wise, clever and dull were trading in partnership, sharing profits and losses 4:3:3 respectively. The accounts of the firm are made up to 31st December every year. So उसको अंडरलाइन कीजिए.
इसका मतलब अकाउंटिंग ईयर हर साल 31 मार्च को नहीं खलास हो रहा है, 31 दिसंबर को खलास हो रहा है. The partnership deed provided inter alia that on the death of a partner, the goodwill was to be valued at 3 years purchase of average profits of 3 years up to the date of death. After deducting interest at the rate of 8% per annum on capital employed and a fair remuneration of each partner, the profits are assumed to be earned evenly throughout the year. वापस पढ़ो वो पैरा. On the death of a partner, the goodwill was to be valued at 3 years purchase of average profit of 3 years up to the date of death. After deducting interest at the rate of 8% on capital employed and a fair remuneration of each partner. तो उधर आप लिखोगे, वो पैराग्राफ के सामने लिखेंगे मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. On 30th June 16, Wise died and it was agreed on the death to adjust goodwill in the capital accounts without showing any amount of goodwill in the balance sheet. It was agreed for the purpose of valuation of goodwill that fair remuneration for work done by each partner would be 15,000 per annum and that the capital employed would be 1,56,000. Clever and Dell were to continue the partnership sharing profits and losses equally after the death of Wise. The following were the amounts of profits of earlier years before charging interest on capital employed. So last 4 साल का profit दिए हुए. You are required to compute the value of goodwill and show the adjustment thereof in the books of the firm. यानी कि आपको दो चीज करना पड़ेगा, एक तो गुडविल वैल्यू करना पड़ेगा और गुडविल वैल्यूएशन के बाद आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी देना पड़ेगा. सो ट्रीटमेंट तो ठीक है, वो रेज और राइट ऑफ ही होने वाला है, सेम थिंग जो अभी किया हमने. बट मोर इंपॉर्टेंट इज गुडविल का वैल्यू कैसे करें, हाउ टू वैल्यू द गुडविल. एंड फॉर दैट आप सेकेंड पैराडेट को बोलेगा 2 बार तो देख लिया, कोई बात नहीं, तीसरी बार पढ़ो. On the death of a partner, the goodwill was to be valued at 3 years purchase of average profit of 3 years up to the date of death. After deducting interest at 8% on capital employed and a fair remuneration of each partner. अब लिखो गुडविल. सो उसमें लिखोगे आप एवरेज प्रॉफिट फॉर 3 years up to date of death, not preceding, up to. That means लास्ट 3 साल, डेथ के पहले वाले लास्ट 3 साल. इसमें से दो चीज डिडक्ट होगी. इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. अगर आपको याद होगा कैपिटल एम्प्लॉयड एसेट्स माइनस लायबिलिटी, एंड लेस fair remuneration to the partners. Multiply by number of years purchase. And number of years purchase, how much is number of years purchase? 3 years, correct? 3 साल, 3 years purchase.
तब जाके आपको मिलेगा गुडविल। सो लिखेंगे सब लोग, एवरेज प्रॉफिट फॉर 3 years अप टू द डेट ऑफ डेथ, जो भी डेट ऑफ डेथ है उसके पहले का 3 साल का प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ, उसमें से 8% ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस होगा और उसके बाद फेयर रेम्यूनरेशन टू पार्टनर माइनस होगा। अभी इसमें जो भी लिखा हुआ है एक एक वेरिएबल हम कैलकुलेट करेंगे। सो आप लिखोगे एवरेज प्रॉफिट फॉर 3 years, एवरेज प्रॉफिट फॉर 3 years अप टू डेट ऑफ डेथ। अभी आप प्रॉब्लम देखोगे, ये प्रॉब्लम में किसका डेथ हुआ वो देखो, वाइस का हुआ, कभी हुआ देखो 30 जून 16। तो 30 जून 16 को अंडरलाइन करो और 3 साल का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है अप टू डेट ऑफ डेथ। अप टू डेट ऑफ डेथ इज 30 जून, करेक्ट? तो 3 साल पीछे चले जाइए। सो 1 जुलाई 13 टू 30 जून 14, ये होगा 3 years। लिखो 1 जुलाई 13 टू 30 जून 14, नहीं 30 जून 16, सॉरी 1 जुलाई 13 टू 30 जून 16। सो लेट अस इसका डिवीजन करते हैं। अकाउंटिंग ईयर कभी बंद हो रहा है? कैन वी से 30 दिसंबर को बंद हो रहा है, 31 दिसंबर को? यस और नो? यस। तो 2013 रेलेवेंट होगा लेकिन हाफ ईयर, तो लिखो 2013 हाफ। 2014 कैन वी से फुल 1 ईयर, लिखो 2014 1। फिर आप लिखेंगे 2015 1 ईयर और उसके बाद आप लिखोगे 2016 हाफ ईयर। सो इट विल बी हाफ ईयर 1 ईयर 1 ईयर हाफ ईयर। तो ये हाफ 1 1 हाफ मिला के कैन वी से 3 साल होगा, आधा साल 1 साल 1 साल आधा साल, सब मिला के कैन वी से 3 साल होगा। सो लेट अस स्टार्ट। 2013 पूरे साल का प्रॉफिट दिया 67,200, प्रॉफिट यूनिफॉर्मली कमा रहे उन लोग। सो आप लिखोगे 67,200 इंटू हाफ, 67,200 इंटू हाफ, ये होगा 33,600। 2014 का तो अपन पूरा प्रॉफिट लेंगे 75,600। 2015 का भी हम फुल प्रॉफिट लेंगे 72,000। और जो 2016 है 62,400, उसका हम आधा लेंगे। सो 62,400 इंटू आधा करेंगे आप, सो 62,400 डिवाइड बाई 2, 31,200। सो ये सबका टोटल करो, टोटल कीजिए कैलकुलेटर पे। आपको मिलेगा 2,12,400।
और ये जो आपको 2,12,400 मिला, ये है प्रॉफिट कितने साल के लिए? 3 साल के लिए, प्रॉफिट फॉर 3 इयर्स। और आप इसका एवरेज निकालोगे, एवरेज प्रॉफिट्स, और वो होगा 2,12,400 डिवाइडेड बाय 3। सो आपका कैलकुलेटर दिखाएगा 70,800। और जैसे आपको 70,800 मिला, आप चले जाइए, आप लिखेंगे 70,800। सो इंपॉर्टेंट क्या है? एवरेज प्रॉफिट फॉर 3 इयर्स अप टू डेट ऑफ डेथ है। डेट ऑफ डेथ 30 जून को है। 3 साल गिनो तो जुलाई 13 टू जून 16, 3 साल होगा। लेकिन अकाउंटिंग ईयर 31 दिसंबर को खलास हो रहा है, तो 13 का आधा और 16 का आधा 1 साल, और 14 और 15 पूरा साल, तो कहने से 3 साल। so, ऐसा आधा आधा करके फुल करके हमें 3 साल का प्रॉफिट है, उसका एवरेज हमने निकाला। And then you calculate 8% of capital employed, so 8% of 1,56,000 वो होगा 12,480। एंड रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, देखो रेम्यूनरेशन टू पार्टनर उन लोग ने आपको कितना दिया है? इट इज 15,000 पर पार्टनर, करेक्ट, पर एनम। और 3 पार्टनर है, सो 15,000 इंटू 3, कैन वी से माइनस करो 45,000। और 70,800 में से आप 12,480 और 45,000 माइनस करो तो आपको मिलेगा 13,320। एंड यू मल्टीप्लाइड बाई 3 से मल्टीप्लाई करो, आपको गुडविल ऑफ द फर्म मिलेगा 39,960। तो आपने है ना ये प्रॉब्लम में पहला काम कर दिया, दैट इज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब आपको करना पड़ेगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। उसके लिए आप लिखोगे वाइज, क्लेवर एंड डल। वाइज, क्लेवर एंड डल। आप गुडविल रेस करोगे 39,960। रेशियो दिया हुआ है 4:3:3। सो वाइस, क्लेवर एंड डल तीनों को क्रेडिट मिलेगा। क्रेडिट 15,984, क्रेडिट 11,988, क्रेडिट 11,988, and then you write off 39,960. Wise has died. और वो टेबल के ऊपर दिया है, देखो, क्लेवर एंड डल इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 39,960 इन द रेशियो 1:1। वो नहीं भी देते तो भी कोई फर्क नहीं है, 4:3:3, 4 काट दो, 3:3 बोले तो 1:1। सो डेबिट 19,980 एंड डेबिट 19,980। तो क्रेडिट करो 15,984, 19,980 माइनस 11,988। डेबिट ज्यादा है सो डेबिट द डिफरेंस, इधर भी डेबिट ज्यादा है तो डेबिट द डिफरेंस। और आप जर्नल एंट्री पास करोगे
Reverse capital account debit 30th June 16. Reverse capital account debit 7992. Dulles capital account debit 7992. And Vice capital account will be credited कितना 15984. सो जर्नल एंट्री पास करेंगे, डेबिट क्लेवर, डेबिट डल और वाइस को क्रेडिट दीजिए 15,984 और आप इसका नरेशन लिखेंगे being the adjustment for goodwill on the admission of Wise. With this, हमने पार्टनरशिप के 2 यूनिट समाप्त किए। एक था इंट्रोडक्शन, दूसरा था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। नाउ बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है यूनिट 3। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप लिखोगे एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो नोटबुक में बच्चे लिखेंगे यूनिट 3 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। समझने की कोशिश करो। एडमिशन का मतलब क्या? नया पार्टनर फर्म में आ रहा है और जब भी नया पार्टनर फर्म में आ रहा है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोस चेंज होगा। अभी नया पार्टनर क्यों आ रहा है, उसके काफी रीजंस हो सकते हैं एज टू नया पार्टनर आ क्यों रहा है। एक तो फर्म को कैपिटल चाहिए। जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है उनके पास कैपिटल लेके आने की ताकत नहीं है। दे कैन नॉट ब्रिंग एडिशनल कैपिटल। दूसरा हो सकता है जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है वो बेचारे बूढ़े होते जा रहे हैं, सो दे वांट समबडी हु कैन रन द बिजनेस हु इज यंग, नौजवान खिलाड़ी। थर्डली ऐसा हो सकता है उनको एक नया लाइन ऑफ बिजनेस में जाने की इच्छा है जो प्रॉफिटेबल है, लेकिन उनके पास उसकी जानकारी नहीं है, तो नया पार्टनर को ले लेते जिसको उसकी जानकारी है, न्यू लाइन ऑफ बिजनेस। सो तरह तरह के रीजन हो सकता है, बट देन जो भी रीजन है, व्हेन देयर इज अ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, कभी भी ध्यान रखो कि देयर विल बी अ चेंज इन पीएसआर। और चेंज इन पीएसआर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। हम क्या क्या कैलकुलेट करेंगे? सपोज ए और बी है और सी आ रहा है। एक्चुअली ये हमने आज ऑलरेडी 2 बार कर चुके हैं
Hold is a 2/3 and 1/3, and in new ratio C आ रहा है 1/4 शेयर के लिए. 2 बार हो चुका है आज. अगर C 1/4 के लिए आ रहा है तो कहने से बैलेंस 3/4 है, 1 - 1/4. सो हम बैलेंस कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये कहला जाएगा बैलेंस मेथड. So 1 - 1/4 as I do, I will get 3/4, and 3/4 into 2/3 and 3/4 into 1/3. So 2/4, 1/4 and 1/4. ये होगा न्यू रेशियो. और उसके साथ होगा सैक्रिफाइस रेशियो, लेकिन इधर कुछ कैलकुलेट करने लायक नहीं. ये भी 2:1 है, ये भी 2:1 है. सो सैक्रिफाइस रेशियो एंड ओल्ड रेशियो सेम ही रहेगा 2:1. इसको हम कहेंगे बैलेंस मेथड. और दूसरा मेथड देखो आप, ए बी एंड सी. ओल्ड रेशियो 7:3 है, 7/10, 3/10 है. न्यू पार्टनर आ रहा है और न्यू पार्टनर सी आ रहा है और उसको ए और बी 1/10 शेयर दे रहे हैं, और वो 1/10 शेयर को ए और बी से परचेज कर रहा है, ए एंड बी से परचेज कर रहा है इन द रेशियो 1:1. अपना स्टैंडर्ड प्रोसीजर के बेसिस पे हम लिखेंगे ओल्ड, न्यू एंड सैक्रिफाइस. अभी ध्यान दो, सी का शेयर 1/10 है. मैं क्या बोल रहा हूँ, सी का शेयर 1/10 है, उसको 2 में डिवाइड करेंगे हम. ए और बी सैक्रिफाइस कर रहे हैं and they are sacrificing in the ratio of 1:1. So 1/10 into half and 1/10 into half, 1/20, 1/20. यह है sacrifice. और आप जानते हो sacrifice is equal to old minus new. New को मैं ये साइड, sacrifice को वो साइड. So new will be equal to old minus sacrifice. So A will be 7/10 minus 1/20. LCM will be 20. This will be 13/20. B will be 3/10 minus 1/20. LCM will be 20. So that will be 5/20. So कैसे होगा रेशियो, 13/20, 5/20, और जो 1/10 है वो 20 के बेसिस पे 2/20. सो 13:5:2. और सैक्रिफाइस दोनों ने 1/20, 1/20 किया तो सैक्रिफाइस रेशियो 1:1 होगा. कैसे हुआ 1:1, 1/20, 1/20 सैक्रिफाइस है. सो रेशियो विल बी 1:1. तो ये जो हमने कैलकुलेट किया है, वेर इज सी ए और बी से परचेज कर रहा है, तो हम इसको बोलेंगे दिस इज परचेज मेथड. सो आई होप आपके दिमाग में सब गया. जब जब होगा एडमिशन तब तब होगा चेंज इन PSR. शुद्ध अंग्रेजी में हम बोल सकते हैं कि देयर इज चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म. को बोलेगा उसका मतलब क्या, उसका मतलब वही, देयर इज अ चेंज इन PSR. ये अंग्रेजी है, चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म. तो दो तरीके से कैलकुलेट हो सकता है. एक बैलेंस मेथड फॉलो करके, अगर प्रॉब्लम चुपचाप है तो बैलेंस मेथड फॉलो करके कैलकुलेट करो. और परचेज मेथड है, सो दे विल टेल यू इट इज परचेज मेथड, इट इज परचेज्ड. और ऐसा बोल सकते हैं सी गेट्स हिज शेयर इन प्रॉफिट इक्वली फ्रॉम A and B. सी गेट्स हिज शेयर इन प्रॉफिट फ्रॉम A and B in the ratio of 3:2.
ऐसा कुछ बोले तो परचेस मेथड होगा। सो इसका एक आप स्नैपशॉट ले लीजिए, बिकॉज हर प्रॉब्लम जो एडमिशन का होगा दैट विल बी बाय टेकिंग इनटू अकाउंट चेंज इन पीएसआर। I presume you have taken it, आपने निकाला होगा। चलो अब हम आगे बढ़े। नाउ अंडरस्टैंड दिस। अभी हमें चेंज इन पीएसआर हो रहा है, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द फर्म में हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देने के लिए या तो मैं पास करूंगा जर्नल एंट्रीज, या तो मैं प्रिपेयर करूंगा लेजर, जर्नल एंट्री और लेजर। उसके पहले वो मुझे क्या देंगे, व्हाट विल बी गिवन, क्या देंगे वो हमें देंगे ओल्ड बैलेंस शीट। इट इज बैलेंस शीट बिफोर एडमिशन, और वो मुझे देंगे एडजस्टमेंट्स एंड एडजस्टमेंट्स। ओल्ड बैलेंस शीट बिफोर एडमिशन एंड एडजस्टमेंट्स। अब ध्यान दो, अभी हमें क्या करना पड़ेगा, व्हाट आर वी सपोज टू डू। सपोज हम लेजर की बात करते हैं, लेजर। सो हम जरूर बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब बैलेंस शीट दिया हुआ है, सपोज बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग आ रहा है 1 करोड़, उसकी वैल्यू 1 खोखा है 1 करोड़, लेकिन उसकी एक्चुअल वर्थ ऑफ एसेट सपोज 5 करोड़ है। तो हमें एसेट को एप्रिशिएट करना पड़ेगा, हमें एसेट को रिवैल्यू करना पड़ेगा। तो रिवैल्यूएशन का टाइम प्रॉफिट या लॉस हो सकता है, तो देयर विल बी अ रिवैल्यूएशन अकाउंट, और उसको हम ऑल्सो P&L एडजस्टमेंट कह सकते हैं, नॉट P&L अप्रोप्रिएशन। वो आज किया था अर्लियर इंट्रोडक्शन में, इधर होगा P&L एडजस्टमेंट। एंड थर्डली बनेगा कैश बैंक अकाउंट, अगर जरूरत गिरे तो कैश बैंक। और ये सब होने के बाद हम बनाएंगे बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन। कंपल्सरी नहीं है, वो आपको प्रॉब्लम देख के करना पड़ेगा। दिस विल बी न्यू बैलेंस शीट्स। New balance sheet is balance sheet after admission. So मैं वापस रिपीट करता हूँ। सपोज वी हैव कैलकुलेटेड PSR एज पर बैलेंस मेथड, दूसरा मेथड परचेज मेथड मैंने बोर्ड से हटा दिया है। बोअर्स ऑफ द फर्म, बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द फर्म में आइदर मैं जर्नल एंट्री पास करूंगा या लेजर प्रिपेयर करूंगा। होल्ड बैलेंस शीट बिफोर एडमिशन दिया जाएगा, और एडजस्टमेंट्स एडमिशन के दिया जाएगा। हमें या तो जर्नल एंट्री पास करना पड़ेगा या लेजर, वो हम डिसाइड नहीं करेंगे, वो प्रॉब्लम बोलेगा। अगर हम लेजर बनाएंगे तो कौन से लेजर बनाएंगे, हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल, रिवैल्यूएशन या P&L एडजस्टमेंट और कैश बैंक अकाउंट। और हम बनाएंगे न्यू बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन, वो भी इफ
स्पेसिफाई, स्पेसिफाई कौन करेगा? प्रॉब्लम, तब हम बैलेंस शीट बनाएंगे। सो अभी हमें क्या क्या इफेक्ट्स देना पड़ेगा, व्हाट ऑल इफेक्ट्स वी हैव टू गिव, ध्यान दो। पहला, बैलेंस शीट, ओल्ड बैलेंस शीट में हो सकता है रिजर्व या लॉसेस। लॉसेस बोले तो P&L डेबिट बैलेंस। रिजर्व्स का मतलब क्या? रिजर्व्स बेसिकली है वो प्रॉफिट्स जो अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए हैं, और लॉसेस वो लॉसेस है जो अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए हैं। कैन वी से ये रिजर्व और लॉसेस जो भी है वो पहले के है, पहले के मींस परटेन्स टू द पास्ट। सो अगर वो पहले के रिजर्व या लॉसेस है तो कैन वी से वो किसका है? ABC का है या सिर्फ A और B का है? ऑब्वियसली वो A और B का है। सो अगर रिजर्व्स और लॉसेस है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आप, यू विल डिस्ट्रीब्यूट इट, distribute amongst old partners in old PSR। रिजर्व का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट बिकॉज वो लाइबिलिटी साइड पे आता है। सो सपोज रिजर्व्स है तो व्हाट एंट्री आई विल पास, देखो रिजर्व्स को मैं डेबिट दूंगा, लेट्स अज्यूम रिजर्व 3 लाख है तो रिजर्व को मैं डेबिट दूंगा 3 लाख, एंड रिजर्व होगा A और B के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। दैट मीन्स रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम अमंग्स द ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड PSR। कैन वी से होगा 2 लाख और 1 लाख। नरेशन सिंपल होगा, बीइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स। पॉइंट वो नहीं है। और अगर हमने ऐसी एंट्री पास किया तो न्यू बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन जो आप बनाओगे, न्यू बैलेंस शीट जो आफ्टर एडमिशन आप बनाओगे, रिजर्व्स वो बैलेंस शीट में नहीं आएगा, रिजर्व्स विल नॉट अपीयर इन द बैलेंस शीट। रिजर्व बैलेंस शीट में नहीं आएगा। बट सपोज एडजस्टमेंट बोलता है, एडजस्टमेंट बोलता है रिजर्व्स शुड रिमेन, रिजर्व शुड रिमेन अनचेंज्ड। रिजर्व्स में कोई तब्दीली नहीं आना चाहिए, रिजर्व्स बैलेंस शीट में आएगा। अगर वो रिजर्व शुड रिमेन अनचेंज्ड होगा तो नए बैलेंस शीट में रिजर्व्स आएगा, रिजर्व्स विल अपीयर इन द न्यू बैलेंस शीट। तो को बोलेगा हम लोग क्या करें, कुछ तो करना पड़ेगा, बिकॉज अगर रिजर्व नए बैलेंस शीट में आया तो आगे जाके वो A, B और C के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। बट रिजर्व्स किसका है? सिर्फ A और B का है। किसको गेन हो रहा है? C को। कौन सैक्रिफाइस करा है? A एंड B। सो कैन वी से C को कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा A और B को, जैसे हमने गुडविल में देखा था। सो अपना प्रेजेंटेशन देखेंगे आप, A, B एंड C। फर्स्ट मैं क्या करूंगा, आई विल डिस्ट्रीब्यूट 3 lakhs and I will distribute 3 lakh in the ratio of 2:1. So डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो A को क्रेडिट मिलेगा 2 लाख और B को क्रेडिट मिलेगा 1 लाख। बट वैसा करोगे और बढ़ जाओगे तो कहने से रिजर्व्स चली गई, बट रिजर्व्स आना चाहिए। सो मैं क्या करेगा, आई विल रिक्रिएट 3 लाख, रिक्रिएट 3 लाख। और मैं रिक्रिएट कैसे करेगा, A को डेबिट, B को डेबिट, C को डेबिट और रिजर्व को क्रेडिट, एंड रिक्रिएट इन द न्यू रेशियो ऑफ 2:1:1।
सो ए को डेबिट करेंगे हम 1,50,000, बी को डेबिट करेंगे 75, सी को डेबिट करेंगे 75. So you will have the net effect. Net effect होगा ए को क्रेडिट मिलेगा 50,000, सी को क्रेडिट मिलेगा 25,000 और डी को डेबिट मिलेगा 75,000. यानी कि हम एक जर्नल एंट्री पास करेंगे, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 75,000 to A's capital account 50,000 और B's capital account 25,000. C is gaining partner, C को डेबिट देने का और A और B को क्रेडिट देने का. एक कभी होगा जब एडजस्टमेंट होगा, रिजर्व शुड रिमेन अनचेंज्ड. अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, प्रॉब्लम साइलेंट है, तो ये होगा हिडन एडजस्टमेंट. रिजर्व योर लॉस को डिस्ट्रीब्यूट अमंगस्ट ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड PSR. आई होप आपके दिमाग में कुछ जा रहा है. सेकंड होगा revaluation of assets and liabilities. Revaluation of assets and liabilities. So revaluation of assets and liabilities में हम क्या करेंगे, जो भी एसेट्स और लाइबिलिटीज का बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू कहाँ मिलेगा, बैलेंस शीट में. बुक वैल्यू कंपेयर विद रिवाइज्ड वैल्यूज. बुक वैल्यू कंपेयर विद रिवाइज्ड वैल्यूज. और रिवाइज्ड वैल्यूज आपको कहाँ मिलेगा, एडजस्टमेंट में मिलेगा. सो रिवैल्यूएशन का प्रेजेंटेशन ऐसा होगा, देखो ये साइड पे होगा प्रॉफिट, ये साइड पे होगा लॉस. अगर एसेट का वैल्यू बढ़ा तो प्रॉफिट, एसेट का वैल्यू घटा तो लॉस. सिंपल. अगर लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ा तो लॉस, अगर लायबिलिटी की वैल्यू घटी तो प्रॉफिट. Appreciation in the value of assets, decrease in the value of liabilities, decrease in the value of asset, increase in the value of liabilities. और ये करने के बाद अकाउंट को बैलेंस करेंगे. प्रॉफिट हो सकता है, लॉस भी हो सकता है. अगर प्रॉफिट हुआ या लॉस भी हुआ, डिस्ट्रीब्यूट अमंगस्ट ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो. और रिवैल्यूएशन के बाद नए बैलेंस शीट में आप सारे रिवाइज्ड वैल्यूज दिखाएंगे. रिवैल्यूएशन के बाद जब आप एंड में बैलेंस शीट बनाओगे, न्यू बैलेंस शीट, उसमें आप सारे रिवाइज्ड वैल्यूज लगाएंगे. इज इट क्लियर? बट ये मनुष्य एडजस्टमेंट आपने देखा, रिजर्व शुड रिमेन अनचेंज्ड. ऐसा हो सकता है एडजस्टमेंट बोलता है assets and liabilities, values of assets and liabilities
values of assets and liabilities should remain unchanged. So value of assets and liabilities should remain unchanged. So अगर ऐसा बोला तो सुनो बराबर से, हमें रिवैल्यूएशन को बढ़ाना पड़ेगा. देयर इज अ रीजन फॉर इट. देखिए, इधर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स है, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी है. अगर एसेट को वही वैल्यू पे वापस लेके जाना है तो अगर अभी डिक्रीज हुआ तो आगे जाके कैन वी से इंक्रीज होना चाहिए. इधर अगर इंक्रीज इन लायबिलिटी हुआ तो डिक्रीज इन लायबिलिटी होना चाहिए. तो व्हाट आई विल डू इज, अगर वो बोले वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी शुड रिमेन अनचेंज्ड, मैं बनाऊंगा रफ बोले तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन, जिसका फर्स्ट पार्ट ये होगा और जो सेकंड पार्ट होगा, स्टाइल तो देखो, जिसको नहीं समझा कि चल क्या रहा है, सेकंड पार्ट में सब जो फर्स्ट पार्ट में उसको रिवर्स करने का. रिवर्स ऑल एंट्रीज ऑफ पार्ट 1. पार्ट 1 की सारी एंट्रीज को रिवर्स करो. को बोलेगा तो अरे जब रिवर्स करोगे तो वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज अनचेंज्ड होगा. अगर आपको प्रॉफिट इधर है तो इधर लॉस होगा, और अगर इधर लॉस होगा तो प्रॉफिट होगा. ये वही कॉन्सेप्ट है गेन एंड सेक्रीफाइस का, गेन एंड सेक्रीफाइस. सो ये जो लॉस आपको आएगा, यू डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट ए बी एंड सी, यानी कि न्यू पार्टनर्स इन न्यू PSR. So I hope, again I repeat this, अगर revaluation of assets and liabilities है, so book values जो बैलेंस शीट में है उसको आप कंपेयर करोगे विद रिवाइज्ड वैल्यूज एज पर एडजस्टमेंट. इन द न्यू बैलेंस शीट रिवाइज्ड वैल्यूज विल अपीयर. इट विल बी ओनली रिवैल्यूएशन. रिवैल्यूएशन में क्या याद रखोगे आप? इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज. वो अकाउंट बैलेंस करने के बाद आपको आइदर प्रॉफिट और लॉस मिलेगा, विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो. बट सपोज एडजस्टमेंट बोलता है कि वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी शुड रिमेन अनचेंज्ड, वो वैसा ही हुआ, रिजर्व शुड रिमेन अनचेंज्ड. यानी कि नए बैलेंस शीट में, न्यू बैलेंस शीट में all assets and liabilities will appear at book values. All assets and liabilities will appear at book values. तो मेमोरेंडम बोले तो याद रखो, मेमोरेंडम का मतलब रफ, कच्चा. आज हमने रफ का और एक वर्ड देखा था, ड्राफ्ट, DRAFT. सो जो एंट्रीज फर्स्ट पार्ट में वो रिवर्स करो, तब वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी सेम होगा, और जो प्रॉफिट है वो इधर लॉस होगा, जो लॉस है प्रॉफिट होगा, जो न्यू पार्टनर्स के बीच में न्यू PSR में डिस्ट्रीब्यूट होगा. दोनों का नेट इफेक्ट दोगे तो सेम जो ये रिजर्व वाली बात है वही हुआ. सो दैट इज रिगार्डिंग रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज. और तीसरा पॉइंट रिगार्डिंग गुडविल, हमने ऑलरेडी ट्रीटमेंट को ऑलरेडी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया हुआ है, व्हाट टू डू विद गुडविल. फोर्थ पॉइंट होगा कैपिटल इंट्रोडक्शन. कैपिटल इंट्रोडक्शन, जो नया पार्टनर आ रहा है कहने से वो कैपिटल लेके आएगा. So there will be a simple journal entry, bank account debit to seize capital. वो ऐसा भी हो सकता है, कैश लाने के बजाय
वो एसेट्स और लायबिलिटीज लेके आ रहे हैं, तो एसेट्स विल बी डेबिटेड एंड लायबिलिटीज विल बी क्रेडिटेड. सो ये होगा कैपिटल इंट्रोडक्शन. फिफ्थ एंड लास्टली फॉर द टाइम बीइंग हम पढ़ेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट. कैपिटल एडजस्टमेंट का मतलब क्या, समझो. अभी हमने बनाया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. पार्टनर्स है ABC. अब पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में कैन वी से ओपनिंग बैलेंस है जो बैलेंस शीट से होगा. उसके बाद हमने क्या किया, हमने रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट किया, तो रिजर्व डिस्ट्रीब्यूशन इधर आया होगा. सपोज रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट होगा तो कैन वी से इधर आएगा बाय रिवैल्यूएशन. बराबर है. अगर न्यू पार्टनर ने कैश लाया फॉर गुडविल तो आई विल से बाय कैश बैंक. ये होगा गुडविल. और सी ने लेके आया कैपिटल. सपोज ये एंट्रीज है. अभी हमें कैपिटल एडजस्ट करना है, तो पहले हम सी के कैपिटल अकाउंट में जाके ऑलवेज क्रेडिट माइनस डेबिट करेंगे. आपको सीधा डेबिट में तो कुछ है नहीं, तो ये उसका कैपिटल, हम उसको बेस लेंगे. दिस कैपिटल विल बी टेकन एज बेस. अभी सुनो बराबर से. सपोज सी की कैपिटल 5 लाख है. कैपिटल एडजस्टमेंट का ये मतलब है कि ए, बी और सी का कैपिटल 2:1:1 में होगा. अगर वो 2:1:1 के रेशियो में होगा तो कैन वी से बी का भी कैपिटल 5 लाख होगा और ए का कैपिटल होगा 10 लाख. सी का कैपिटल आपने बेस लिया है तो सी का कैपिटल तो टैली होगा, लेकिन सपोज मैंने ए का कैपिटल को बैलेंस किया, टोटल 11 लाख है, इधर 10 लाख है. सो कैन वी से इधर सरप्लस होगा. देयर विल बी अ सरप्लस. तो आइदर मैं उसको रिफंड करूंगा और आई कैन ट्रांसफर इट टू करंट अकाउंट जो लायबिलिटी साइड पे आएगा, सरप्लस. ऐसा हो सकता है मैंने ये क्रेडिट किया तो ये सबका टोटल सिर्फ 4 लाख आया, 4 लाख 4.5 लाख आया, तो कैन वी से इधर 50,000 की डेफिशिएंसी आई. डेफिशिएंसी. और डेफिशिएंसी या तो कैश में लेके आया और नहीं लेके आया तो मैं उसको करंट अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा जो बैलेंस शीट के एसेट साइड पे आएगा बिकॉज इट इज रिसीवेबल, और ये लायबिलिटी साइड पे आता है बिकॉज इट इज पेएबल. सो इसको हम कहेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट. सो अब ये जो भी डिस्कशन हुआ उसकी मैं समरी दूंगा फटाफट. अभी हम कर रहे हैं यूनिट 3 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. नया पार्टनर फर्म में आ रहा है तो पीएसआर चेंज होगा. 2 तरीके के पीएसआर हो सकते हैं, एक बैलेंस मेथड के ऊपर और एक परचेज मेथड के ऊपर. दोनों का उदाहरण जो आपने ऑलरेडी स्नैपशॉट ली हुई है. अगर बैलेंस मेथड होगा तो पहला ओल्ड लिखो, न्यू कैलकुलेट करो और सैक्रिफाइस भी आएगा. उसके बाद हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देंगे इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द फर्म. आइदर जर्नल एंट्रीज होगा और लेजर
वो आपने डिसाइड करोगे, इट विल बी स्पेसिफाइड। आप रिक्वायर्ड पार्ट को कभी भी ध्यान से देखेंगे, क्या उन लोगों ने जर्नल एंट्री पूछा है या लेजर, अकॉर्डिंगली आप काम करोगे। वो आपको देंगे ओल्ड बैलेंस शीट बिफोर एडमिशन एंड एडजस्टमेंट्स, और पहला देगा पार्टनर्स कैपिटल, रिवैल्यूएशन और पीएनएल एडजस्टमेंट एंड कैश बैक। न्यू बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन आपको बनाना होगा इफ स्पेसिफाइड। पहला हमने देखा रिजर्व या लॉसेस होगा तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करो अमंग्स ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर। वो आपको ऐसा बोलने वाले नहीं कि वो डिवाइड करो, सो वो होगा हिडन एडजस्टमेंट। उसके बाद एक एडजस्टमेंट ऑल्टरनेटिव है, और ऑफ कोर्स अगर वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो नए बैलेंस शीट में रिजर्व नहीं आएगा। और वो बोले रिजर्व शुड रिमेन अनचेंज्ड। सो रिजर्व्स नए बैलेंस शीट में आएगा, लेकिन पीएसआर चेंज हुआ है, पीएसआर चेंज हुआ है। सो पहला डिस्ट्रीब्यूट करने का और उसके बाद रिक्रिएट करने का, दो एंट्रीज पास करने के बदले में एक एंट्री नेट इफेक्ट का आप देंगे। वो होने के बाद होगा रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, बुक वैल्यू ऑफ बैलेंस, बुक वैल्यूज एज पर बैलेंस शीट कंपेयर विद रिवाइज्ड वैल्यू एज पर एडजस्टमेंट। उसके लिए हम सिर्फ बनाएंगे रिवैल्यूएशन। ये सब एप्रिसिएशन एंड एसेट, डिक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन लायबिलिटी करके प्रॉफिट और लॉस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स न्यू पार्टनर्स इन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर। नए बैलेंस शीट में वो रिवाइज्ड वैल्यूज पे आएगी। बट सपोज एडजस्टमेंट दिया है कि वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी शुड रिमेन अनचेंज, दैट मींस नए बैलेंस शीट में एसेट और लायबिलिटी बुक वैल्यू पे आना चाहिए। सो जो आपने एंट्रीज फर्स्ट पार्ट में की उसको आपको रिवर्स करना पड़ेगा सेकंड पार्ट में। रिवर्सल ऑफ ऑल एंट्रीज ऑफ सेकंड पार्ट 1 इन पार्ट 2। प्रॉफिट पहले का, लॉस होगा, लॉस प्रॉफिट होगा, जो न्यू पार्टनर्स के बीच में न्यू पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और नए बैलेंस शीट में एज यू आर अवेयर एसेट्स एंड लायबिलिटीज विल अपीयर एट बुक वैल्यूज। उसके बाद थर्ड होगा गुडविल, फोर्थ होगा कैपिटल इंट्रोडक्शन, सिंपल एंट्री कैश बैंक डेबिट टू कैपिटल। अगर नया पार्टनर एसेट और लायबिलिटी लेके आए तो डेबिट द एसेट, क्रेडिट द लायबिलिटी एंड क्रेडिट पार्टनर्स कैपिटल। एक बार वो हुआ तो कैपिटल एडजस्टमेंट हो सकता है। ये लेवल पे याद रखो, कैपिटल एडजस्टमेंट इफ स्पेसिफाइड। तो कैपिटल एडजस्टमेंट इफ स्पेसिफाइड में मैंने एग्जांपल्स लिखे थे। ओपनिंग बैलेंस, रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन, रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट, गुडविल लेके आया, कैपिटल लेके आया। हमें सी का कैपिटल को बेस लेना पड़ेगा, बेस। और सी का कैपिटल को बेस लेके हम नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। और जब हम ए और बी का कैपिटल बैलेंस करोगे तो हमें मिलेगा आइदर सरप्लस और डेफिशिएंसी। सरप्लस कैश बैंक के थ्रू होगा, और अगर करंट अकाउंट में गया तो करंट अकाउंट लायबिलिटी साइड पे आएगा, और इधर करंट अकाउंट में आया तो वो डेफिशिएंसी है जो हमें पार्टनर से रिकवर करना है। रिकवर करना है मींस इट इज एन एसेट। और ये सब प्रोसीजर होने के बाद हम बनाएंगे नया बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन। अभी आप क्या करोगे, एक स्नैपशॉट लीजिए इसका और हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 2, A and B are in partnership sharing profits and losses at the ratio of 3:2. They take C as a new partner. Calculate new profit sharing ratio if C purchases 1/10 from A. 2 and A and B agree to sacrifice 1/10 share to C in the ratio of 2:3. 3 simply gets 1/10 share of profits. मीनिंग इज कि आपको है ना 3 डिफरेंट सिचुएशन में पीएसआर कैलकुलेट करना है, करेक्ट? तो हम चालू करें, लेट्स स्टार्ट। सिचुएशन 1, A, B and C, old and new. Three by 5 and 2 by 5.
सी आया 1/10 के लिए, उन्होंने क्या दिया है, वो किससे परचेस करा है, परचेस किससे करा है, वो ए से कर रहा है, बराबर है। तो आप नेक्स्ट लाइन पे लिखेंगे न्यू इज इक्वल टू ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। आप डायरेक्टली लिख सकते हो बिकॉज सेक्रीफाइस पूरा 1/10 ए ने किया है। सो ए का शेयर होगा 3/5 माइनस 1/10। कैन वी से एलसीएम इज 10। अगर एलसीएम 10 है तो ये होगा 5/10। सो ये होगा 5/10 और जो 2/5 है वो होगा 4/10। ये तो 1/10 ही रहेगा। Therefore, new ratio is 5:4:1. ये था फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट अगेन आप लिखोगे ए बी सी, आप लिखेंगे ओल्ड रेशियो, वो तो वही रहेगा 3/5 एंड 2/5। न्यू रेशियो 1/10 ही है, लेकिन अभी आप देखो लास्ट टाइम सिर्फ ए ने सेक्रीफाइस किया था, अब देखो दोनों सेक्रीफाइस करा इन द रेशियो ऑफ 2:3। सो पहला हमें सेक्रीफाइस कैलकुलेट करना पड़ेगा, बराबर है। सो हम करेंगे सीज शेयर 1/10, इसको ए और बी में डिवाइड करो, टू इज टू थ्री। So 1/10 into 2/5 and 1/10 into 3/5। तो ये क्या होगा, इसको सिंप्लीफाई छोड़ो, 2/50, 3/50। कैन वी से ये होगा सेक्रीफाइस। सो ए का शेयर 3/5 माइनस 2/50। कैन वी से एलसीएम होगा 50। 30 माइनस 2 कैन वी से 28/50 होगा। और बी होगा 2/5 माइनस 3/50। एलसीएम होगा 50। 20 माइनस 3 तो कैन वी से होगा 17/50। सो आप लिखोगे 28/50, 17/50 एंड 1/10 कैन वी से विल बी 5/50, 5/50। सो आपको मिलेगा न्यू रेशियो, न्यू रेशियो होगा 28:17:5। एंड थर्ड सिचुएशन बहुत ही सिंपल है, वो अपना बैलेंस मेथड के ऊपर डिपेंडेंट है। होल्ड होगा 3/5 2/5। न्यू में सी को 1/10 शेयर है, 1 माइनस 1/10 9/10 है, 9/10 इंटू 3/5 and 9/10 into 2/5, करेक्ट। सो ये होगा 27, 18 और ये होगा 5/50। तो न्यू रेशियो होगा 27:18:5। सो ये क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों सिचुएशन चले गए।
और अब आप देखो क्वेश्चन 8, जरा क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से पढ़ो. A and B are sharing profits in the ratio of 3:2. They admitted C as a new partner for 1/5 share. Calculate a new PSR and sacrifice ratio. So पहला आप लिखोगे old ratio 3/5 2/5. न्यू रेशियो कहने से आ रहा है 1/5 के लिए, कुछ नहीं दिया तो बैलेंस मेथड ही होगा. 4/5 इंटू 3/5, 4/5 इंटू 2/5. सो हम मल्टीप्लाई करेंगे 12/25, 8/25. 1/5 will be 5/25. We will say sacrifice ratio 3:2. वो तो सेम ही होगा. 3:2, 12:8, वो 3:2 ही होगा. सो आई होप कि आपके दिमाग में क्या है. क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 8 छोटे छोटे क्वेश्चन है, सिर्फ PSR के बेसिस पे है. अब हम करेंगे फॉर डूइंग द एंटायर क्वेश्चंस. तो आप आ जाइए टू क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाइए. रीड क्वेश्चन 3. Let's read it. X and Y are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2. On 31st March 11, the position of the business was as follows. Liability side पे creditors है, capital accounts of X and Y and general reserve. On the asset side, there is goodwill, stock, plant and machinery, debtors and cash. Z agrees to join the business on the following conditions. A. He will introduce 20,000 as his capital and pay 10,000 to the partners as premium for goodwill. एक बात याद रखो, जो गुडविल है उसको हम प्रीमियम भी कह सकते हैं. बहुत अच्छी बात है कि वो बोले एज प्रीमियम फॉर गुडविल. वो अगर बोले कि एज प्रीमियम यानी कि उसका मतलब वही है गुडविल. The new profit sharing is 2:1:1. It was decided that the half of the amount of goodwill is to be withdrawn by the partners. B. A revaluation of the assets of the firm will be made by reducing plant and machinery account to 20,000, stock by 10%, and by creating a provision for bad debts at 5% on debtors. You are asked to give the necessary accounts and the books of the firm recording the above transaction and give the balance sheet of the new firm on the completion of the transaction. General reserve is to appear at the old figure in the new balance sheet. हाँ, तो एक काम कीजिए, जो बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व है ना उसके सामने लिखो एडजस्टमेंट. और एसेट साइड पे जो गुडविल है ना
उसके सामने भी स्टार हो जाए बिकॉज वो गुडविल राइट ऑफ करना पड़ेगा। और आगे पढ़ेंगे आप लास्ट पैरा में, द पार्टनर्स हैव डिसाइडेड टू मेंटेन कैपिटल्स आफ्टर एडमिशन इन द पीएसआर, तो उसके सामने आप लिखोगे कैपिटल एडजस्टमेंट। सो आप क्या क्या करोगे, वो क्या बोले कि आप बनाएंगे लेजर, बराबर है, और बैलेंस शीट बाद। सो पहला आप क्या करोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार रखोगे, 8 लाइन, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी 8 लाइन, कैश बैंक 5 लाइन, 5 से 6 लाइन, और बैलेंस शीट 15 लाइन। सो अगेन आई रिपीट, पहला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 8 लाइन, रिवैल्यूएशन 8 लाइन, कैश बैंक 5 से 6 लाइन, बैलेंस शीट 12 से 15 लाइन तैयार रखो। बुक्स ऑफ फर्म,
चलो आपने सब तैयार रखा ही होगा, करेक्ट? सो पहला वर्किंग नोट, ऑलवेज रिमेंबर, जो पहला वर्किंग नोट होगा वो होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए. सो यू राइट डाउन PSR. So X, Y, and Z old ratio, three-fifth and two-fifth. New ratio, two-fourth, one-fourth, and one-fourth. Correct? So आप कैलकुलेट करोगे सैक्रिफाइस ओल्ड माइनस न्यू, 3/5 minus 2/4. So LCM will be 20. That will be 2/20. 2/5 minus 1/4, LCM will be 20. That will be 3/20. Therefore sacrifice ratio होगा 2:3. फिर आप जाएंगे कैश बैंक अकाउंट में, उधर लिखेंगे आप बैलेंस ब्रॉट डाउन 2000. कैपिटल अकाउंट में चले जाइए, उधर लिखेंगे आप बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 30 and 25. उसके बाद जो गुडविल है उसको राइट ऑफ करो. वो अभी राइट ऑफ करो या बाद में करो, करना तो पड़ेगा ही. गुडविल टू बी रिटन ऑफ, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट दो होल्ड रेशियो में. सो कैन वी से वो होगा 3000 and 2000. सो गुडविल के सामने बैलेंस शीट में क्रॉस मार्क कर दो, गुडविल चली गई. नाउ बैलेंस शीट में आप देखो जनरल रिजर्व है, लेकिन वो लास्ट पैराग्राफ देखो, जनरल रिजर्व इज टू अपीयर एट द ओल्ड फिगर इन द न्यू बैलेंस शीट, यानी कि रिजर्व शुड रिमेन अनचेंज्ड. करेक्ट? तो हमें गेन और सैक्रिफाइस की कॉन्सेप्ट के बेसिस पे जाना पड़ेगा. सो वी राइट डाउन वर्किंग नोट 2, जनरल रिजर्व. So first you distribute पहला आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे 5000, रेशियो ऑफ 3:2. सो एक्स और वाई को क्रेडिट मिलेगा 3000 and 2000.
और उसके बाद आप करोगे रिक्रिएट 5000 in new ratio 2:1:1. So debit 2500, debit 1250 and debit 1250. तो आपको मिलेगा नेट इफेक्ट क्रेडिट 500, क्रेडिट 750 और डेबिट 1250। सो जेड के डेबिट साइड पे चले जाइए टू एक्स एंड वाई 1250 और एक्स और वाई को क्रेडिट करो बाई जेड 500 and 750। और एक बात याद रखो, ये एडजस्टमेंट होने के बाद जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में आएगा। आगे जाके अगर आप भूल गए तो क्या करो, लायबिलिटी साइड पे 2-4 लाइन छोड़ के जनरल रिजर्व लिख दो 5000। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। वो कितना कैपिटल लेके आ रहा है? 20,000 लेके आ रहा है कैपिटल, ठीक है। सो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल 20,000 एंड वो गुडविल लेके आ रहा है 10,000, बराबर है। एंड कैश बैंक ऑन द डेबिट साइड आप लिखोगे टू एक्स कैपिटल एंड वाइस कैपिटल goodwill in sacrifice ratio of 2:3। सो 10,000 को आप 2:3 में डिवाइड करो तो आपको मिलेगा 4,000 और 6,000। आप लिखोगे इधर बाय कैश बैंक, ब्रैकेट में लिखो आप गुडविल 4,000 और 6,000। और जैसे कैश आया कैश विड्रॉ भी होगा, वही एडजस्टमेंट देखो। उन लोगों ने आपको क्या दिया? हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज टू बी विड्रॉन, करेक्ट। तो इधर ब्रैकेट में लिखो हाफ ऑफ गुडविल विड्रॉन, हाफ ऑफ गुडविल विड्रॉन। तो इसका मतलब 4,000 गुडविल था एक्स का, उसका हाफ बोले तो 2,000 और 6,000 का हाफ बोले तो 3,000। सो कैश बैंक के क्रेडिट साइड पे चले जाइए। बाय एक्स कैपिटल 2,000 and by Y's capital 3,000। With this can we say पूरा एडजस्टमेंट ये चले गए।
Look at adjustment B. A revaluation of the assets of the firm will be made by reducing plant and machinery to 20. So plant and machinery का old value देखो 25, नया value 20, to plant and machinery 5,000. Stock is to be reduced by 10%. तो इधर आप लिखोगे प्लांट एंड मशीनरी के सामने तो लिखना है तो लिखो 25 माइनस 20, 25 ओल्ड वैल्यू 20 न्यू वैल्यू, तो 5,000 से घटेगा। उसके बाद स्टॉक्स है, स्टॉक्स 10% से कम करना पड़ेगा। स्टॉक 20,000 है, उसका 10% बोले तो 2,000। And then there is RDD, डेटर्स का 5%, सो 18,000 का 5%, 900। सो इस बात पे एडजस्टमेंट भी पूरा समाप्त हुआ बिकॉज रिवैल्यूएशन चले गए। And you will write loss, distribute the loss between X and Y, 3/5 and 2/5। तो आप जरा कैलकुलेटर यूज करेंगे। $4,740 and $3,160। So आप लिखोगे टू रिवैल्यूएशन 4,740 and 3,160। एंड लास्ट पैराग्राफ विद दिस एडजस्टमेंट ए चले गए, बी भी चले गए। लास्ट पैराग्राफ लास्ट लाइन पढ़ो। द पार्टनर्स हैव डिसाइडेड टू मेंटेन द कैपिटल्स आफ्टर एडमिशन इन द PSR। सो आप Z के कैपिटल अकाउंट में चले जाइए, Z के कैपिटल अकाउंट में चले जाए एंड व्हेन यू गो टू Z's कैपिटल आपको मिलेगा 18,750 कैपिटल Z का, और जो कैपिटल है वो PSR में एडजस्ट करना पड़ेगा। न्यू PSR है 2:1:1, तो Y का भी कैपिटल 18,750 होगा और X का कैपिटल अकाउंट 37,500 होगा। वो कैसे हुआ? अगर 18,751 है तो 2 कितना है? डबल। अब आप X का कैपिटल अकाउंट को ध्यान से देखो तो कहने से डेबिट साइड ज्यादा लग रहा है, करेक्ट? यस। चलो कैलकुलेटर यूज करेंगे सब लोग। 37,500 है प्लस 4,740 प्लस 2,000 प्लस 3,000, 47,240। डेफिशिएंसी आएगी 12,740, और जो डेफिशिएंसी है कैन वी से दैट विल बी ब्रॉट इन कैश। सो आप लिखोगे बाय कैश बैंक। आपके रेफरेंस के लिए आप लिख सकते हो डेफिशिएंसी मींस शॉर्टेज।
और जैसे आपने उधर लिखा कैश बैंक के डेबिट साइड पे डेबिट दे दो टू एक्स कैपिटल 12740, वाई का कैपिटल अकाउंट कोई भी साइड हो सकता है। फर्स्ट टोटल अपना क्रेडिट साइड, पहले क्रेडिट साइड टोटल करो, 31,750 माइनस 2,000 माइनस 3,000 माइनस 3,160 माइनस 18,750, तो आपको बैलेंसिंग फिगर मिलेगा 4840। सो ये होगा सरप्लस। सो यू विल से टू कैश बैंक सरप्लस। सो आप चले कैश बैंक के क्रेडिट साइड में, बाय वाइस कैपिटल अकाउंट 4840। सो कैलकुलेटर उठा लो, बैलेंस द कैश बैंक, $44,740 है। आपको क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा 34,900। और जैसे आपको 34,900 का बैलेंस आया, बैलेंस शीट के एसेट साइड के एंड पे लिख के रखो कैश बैंक 34,900। और अभी बैलेंस शीट कंप्लीट करने का टाइम आ गया है। लाइब्रेरी साइड देखेंगे आप, लाइब्रेरी साइड बाद में देखो, पहले कैपिटल लिखो, राइट द कैपिटल अकाउंट्स। कैपिटल अकाउंट्स होगा एक्स वाई जेड 37,500 18,750 18,750 75,000। उसके बाद ट्रेड क्रेडिटर्स है उधर, वो होगा 10,000। इसे 10,000, यस। सो 75 प्लस 5 प्लस 10 कैन बी सी बैलेंस शीट 90,000। वो आपका टारगेट होगा। एसेट साइड पे आप देखो गुडविल चले गए, उसको राइट ऑफ कर दिया आपने। उसके बाद होगा स्टॉक। स्टॉक देखो कितना दिया है, स्टॉक 20,000 है। 20,000 को इनर कॉलम में लिखो लेस 10%, आपने राइट ऑफ किया 2,000, दैट इज 18,000। उसके बाद होगा प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी था 25,000 और लेस होगा रिडक्शन 5,000। डेटर्स 18,000 है। RDD 900 रुपया है। 17,100 है। और कोई एसेट दिख तो नहीं रहा है।
बिंगो, टोटल करो, कैन वी से 90,000 पे बैलेंस शीट टैली हुआ। Question 1. A and B are partners having capitals after all adjustments of 45 and 55 respectively. C is admitted for 1/5 share and asked to bring in proportionate capital. Determine capital to be brought in by C. वो proportionate capital को underline कीजिए बच्चों. He is supposed to bring in proportionate capital. अभी इसको ध्यान से जस्ट अंडरस्टैंड इट, लिखो मत. सी का शेयर 1/5, सो अगर सी का शेयर 1/5 है, सो ए और बी का शेयर 4/5. तो लिखो, नाउ यू कैन राइट सी इज द शेयर 1/5, ए एंड बी शेयर 4/5. टेक्स्ट बुक देखेंगे आप, उसका कैपिटल कितना है ए और बी का? 55 और 45, करेक्ट. टोटल करो, 1 लाख कैपिटल है, 55 प्लस 45, करेक्ट. सो अगर 4/5 शेयर का कैपिटल 1 लाख है, तो आप लिखोगे कैपिटल ऑफ फर्म विल बी 1 लाख divided by 4/5, which is equal to 1 lakh into 5/4. So फर्म का कैपिटल होगा 1,25,000. फर्म का कैपिटल होगा 1,25,000. Therefore, proportionate capital of C. सी प्रोपोर्शनेटली लेके आ रहा है, सो 1,25,000 अगर कैपिटल का फर्म है तो सी लेके आएगा 1,25,000 इंटू 1/5, कैन वी से 25,000. अगर आपको इतना लंबा नहीं करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आप लिखोगे और अगर 4/5 शेयर के लिए कैपिटल 1 लाख है, अगर 4/5 शेयर के लिए कैपिटल 1 लाख है, तो 1/5 शेयर के लिए कैपिटल कितना होगा? सो दैट विल बी 1 लाख. देखो 5/5 तो कॉमन है, 1 लाख इंटू 1/4, डायरेक्टली आपको मिलेगा एक झटके में आंसर 25. ये आराम से करने वाला मेथड आईसीए का है, ये शॉर्टकट है. 4/5 के लिए 1 लाख, 1/5 के लिए कितना? तो 1 लाख इंटू 1/4.